Okay, so Bismillah Rahman Rahim. So, in today's lecture, what we are going to do, we are going to work on these objectives. The first objective is about show understanding of how data for a vector graphic are encoded using the term drawing of objects, property, and drawing list. Then we need to focus on second objective. The second objective is justify use of bitmap image or a vector graphic image for a given task. It means you will be given a scenario and you have to check, you have to identify, you have to decide what type of image you are going to use in that scenarios. Either you are going to use bitmap image, either you are going to use vector graphic image. So these are the two important objectives. Remember? Okay, so moving towards the vector graphic image. Remember that vector graphic image is made up of scalable shapes. It means whenever you're going to talk about vector graphic image, they are made up of scalable shapes. What does scalable shape mean? Do you know what is meant by scalable shape mean? No. Okay, so for example, straight lines, because we're talking about vector graphic, so straight line is slash circle. These are the scalable shape. We call them as a scalable shape. Okay. We can also call curve. Curve is also scalable shape. It means that if I talk about circle, this is circle. What I need to know about its center, what's its center value, its radius, and the line, the border line with. सो इन चीज़ों के बारे में मुझे पता होगा तो डेफिनेटली आई कैन ड्रा दिस सर्कल at any time. If I want to display this circle on larger scale, that scale is 2 times of this canvas. So it's mean what I need to do, मुझे क्या करना होगा, मुझे रेडियस को डबल करना पड़ेगा, सेंटर विल बी माई सेम, और इस सेंटर की जो रिलेटिव पोजीशन विद अदर ऑब्जेक्ट्स होगी वो भी चेंज हो जाएगी आपके पास. लेट्स सपोज एक सर्कल जहाँ पे था तो आप डेफिनेटली ये सर्कल थोड़ा सा आपका बड़ा बनेगा, और इसके साथ लेट्स सपोज जहाँ पे अगर स्टार था जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे था तो ऑटोमेटिकली ये अब वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 टाइम उसका भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा. इट्स मीन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विल आल्सो चेंज. अंडरस्टूड बेटा? जी. ओके, सो वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं, जो वेक्टर इमेजेस होते हैं, दे यूज स्केलेबल शेप्स लाइक स्ट्रेट लाइन, लाइक कर्व, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट मीन पोजीशन होती है आपके पास. लेट्स सपोज मैं बोलूँ अगर इफ यू टॉक अबाउट 2D कोऑर्डिनेट्स तो वी विल बी हैविंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. If I have 3D coordinates, I will be having 3 value x, y and z. Then we have geometry to precisely define the parts of the image. So it means your vector graphic image is made up of geometrical shapes. Here is an example of a vector graphic image. Remember that vector graphic image can be designed using computer aided designs. या आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा कोरल ड्रा. हैव यू हर्ड अबाउट कोरल ड्रा? No. Have you heard about Corel Draw? No. No. So Corel Draw is a image software where you can edit the image, where you can design the vector graphic image as well. Have you heard about Photoshop? Yes. Yes, Photoshop is used to create bitmap image. Yes. Good. Yes. Okay. Okay. Vector graphic will contain drawing list
included in the file header. They will be included in the file header. That is made up of what? Drawing list is made up of command. They are used for each object that makes up that graphic image. So commands will be used that will help to create an object that will help to make that graphic image as well. तो जो हमारी कमांड्स होंगी, कमांड्स यूज की जाती हैं टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट द इमेज. देन वी हैव एट्रीब्यूट्स. Attributes are used to define the property that make each object. आपके जो attributes होते हैं, they are the properties. कि आपका सर्कल कैसे दिखाई देगा. आपका सर्कल जो लाइन है, लाइन इज स्केलेबल शेप. ये जो लाइन है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए. ओके, सो जी. two things are very very important: command and attributes. Command is used for each object that make up the graphic image. जो graphic image आपको बना रहा होता है, आपके लिए हर objects के लिए command होती है. जैसे मैंने आपको बताया कि circle, if I want to draw a line, तो मुझे इसका starting point और इसका end point पता होना चाहिए. I need to know the starting point coordinates and ending point coordinate. और इस shape का दूसरी shape के साथ जो relative distance है वो भी मुझे पता होना चाहिए. Understood? So two factors जी. command, that is attribute, they आपको पता होने चाहिए whenever you are going to draw the image. Next thing जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, relative position. आपके इमेज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो relative position है with other object, you need to know them. आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए, because whenever you are going to draw that image on larger scale, बड़े कैनवस के ऊपर इसको जब ड्रा करोगे तो डेफिनेटली the distance between those object will also increase depending upon the ratio कि कितनी रेशियो से आपका कैनवस इंक्रीज हो रहा है. अगर आपका 2 टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी 2 टाइम बढ़ जाएगा. अंडरस्टूड? जी. Then we have dimension of each objects are not defined. Remember that हम वेक्टर ग्राफिक के अंदर डिमेंशन ऑब्जेक्ट्स की डिफाइन नहीं करते. We need to have a calculation, we need to have instructions कि आपने इमेज को कैसे ड्रा करना है. Understood बेटा? जी. Okay, so dimension of each objects are not defined, but the relative position of object to each other is very very important. Let's suppose अगर हम बात करते हैं कि आपने एक छोटा फ्लैग बनाया था, पाकिस्तानी फ्लैग. अब जब इसका जो साइज था that was 2x2 था. अब आपने इसको बड़े स्केल के ऊपर ड्रा करना है, दैट इज ए 10x10 करना है आपने. इट्स मीन आपका 5 टाइम इसका बढ़ चुका है साइज. तो दोबारा इस इमेज को रीड्रा किया जाएगा ऑटोमेटिकली. सॉफ्टवेयर विल डू इट बिकॉज जब आपने इस इमेज को सेव किया था तो इसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी टू ड्रा दिस इमेज हैज बीन सेव्ड इन कंप्यूटर. जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं दे विल बी सेव्ड इन द कंप्यूटर. सो इन इंस्ट्रक्शंस को वो यूज करके आपके इमेज को 10x10 फ्रेम के ऊपर दोबारा ड्रा करेगा. रिमेंबर दैट जो डिस्टेंस था स्टार का मून के साथ, ये डिस्टेंस भी इसी हिसाब से ही 10x10 फ्रेम के ऊपर, 10x10 कैनवस के ऊपर रीड्रा हो जाएगा. अंडरस्टूड बेटा? जी. एनी क्वेश्चन? No. Don't need to store the dimension in vector graphic image. You need to store only the relative position of object. क्योंकि जब आप उसको इमेज को स्केल अप करोगे, स्केल डाउन करोगे तो relative position will be required. आपको relative position की जरूरत पड़ेगी. Okay, so vector graphic file will have smaller size than corresponding bitmap file. आपकी जो vector graphic file होती है इसका साइज स्मॉलर क्यों होता है? बिकॉज we don't need to store each thing, we need to store only instructions. हमें सिर्फ instructions store करनी पड़ती हैं to draw that image. Understood बेटा? जी. On the other hand, when we talk about bitmap file, we need to store each and every information related to the bitmap image. Either we talk about pixel, either we talk about color that is made up of pixels. So ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें वहाँ पे store करनी पड़ती हैं when you talk about bitmap image.
जब वेक्टर ग्राफिक इमेज को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, वी नीड टू स्टोर ओनली इंस्ट्रक्शन टू ड्रा दैट इमेज, कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन हमें पता होनी चाहिए कि इस इमेज को अगर हमने ड्रा करना पड़े तो हम इसको कैसे ड्रा करेंगे. Then we have comparison between vector graphic image and bitmap image. We already talk about कि जो वेक्टर ग्राफिक इमेज है दैट इज मेड अप ऑफ ज्योमेट्रिक शेप, जिसकी डेफिनेशंस होती हैं, जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज होती है. वी कैन आल्सो कॉल देम प्रॉपर्टीज. जो एट्रीब्यूट्स होते हैं दे कैन आल्सो बी नोन एज ए प्रॉपर्टी. कि आपने जो इमेज बनाया इसकी विड्थ कितनी है, इस इमेज के अंदर कलर कौन सा यूज हो रहा है, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी ट्रीटेड एज ए एट्रीब्यूट. When you talk about bitmap image is made up of small pixel, जिसके different colors हो सकते हैं. Then we have to alter or edit the design. It is necessary to change each of the geometric shape. आपको geometric shape को edit करना पड़ेगा, change करना पड़ेगा. But when you talk about bitmap image, तो अगर आप उसको alter करना चाहते हैं या edit करना चाहते हैं, you need to edit each of the pixel to change the design of the image. You need to work on the pixel. On the other hand, when you talk about vector graphic, so you need to work on the shapes. आपको ज्योमेट्रिक शेप्स के ऊपर काम करना पड़ता है. रिमेंबर दैट हमारी जितनी भी शेप्स होती हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं. लाइक अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, तो दिस इज ट्रायंगल. अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, दिस इज रेक्टेंगल. सो इसके 4 कॉर्नर पता होने चाहिए, इसके 3 कॉर्नर पता होने चाहिए, साइड का जो साइज है इनका पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए. तो हर ज्योमेट्रिक शेप की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी यू विल बी एबल टू ड्रा दैट इमेज एट एनी स्केल. जिस मर्जी स्केल के ऊपर, साइज के ऊपर इसको आप ड्रा कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट ट्रू व्हेन यू टॉक अबाउट बिटमैप इमेज, क्योंकि बिटमैप इमेज के अंदर हम पिक्सल को स्टोर कर रहे होते हैं. वी आर नॉट वर्किंग ऑन इंस्ट्रक्शन. They do not require large file size since it is made up of simple geometric shape. हमारी जो फाइल का साइज होता है वो ज़्यादा लार्ज नहीं होता क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर ये काम करता है. बट ऑन द अदर हैंड वी है व्हेन यू टॉक अबाउट बिटमैप इमेज यूज पिक्सल, तो आपका साइज डेफिनेटली बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू वेक्टर ग्राफिक इमेज. बिकॉज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक शेप इज लिमिटेड, आपके पास जो नंबर ऑफ शेप्स लिमिटेड होती हैं, तो जो आपका इमेज है व्हेन यू ड्रा द इमेज फ्रॉम वेक्टर ग्राफिक तो डेफिनेटली वो इमेज रियलिस्टिक नहीं होता. बट ऑन द अदर हैंड यू विल बी हैविंग रियलिस्टिक इमेज व्हेन यू टॉक अबाउट बिटमैप इमेज. फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट जो हम यूज़ करते हैं वो .svg है, .cgm है, .og है. यू डोंट नीड टू मेमोराइज देम, आपको याद करने की जरूरत नहीं है. बट आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू टॉक अबाउट वेक्टर ग्राफिक इमेज तो ये आपके फॉर्मेट्स होते हैं. फॉर्मेट्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा साउंड का फॉर्मेट है .mp3 है. तो अगर किसी जगह पे .svg है तो आप इसको ट्रीट करोगे कि ये हमारा वेक्टर ग्राफिक इमेज है. अगर कहीं आपको png नज़र आता है या jpg नज़र आता है, दैट इमेज विल बी नोन एज ए बिट मैप इमेज. वो आपका बिट मैप इमेज हो जाएगा. अंडरस्टूड बेटा? Yes. ओके. देन वी हैव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपने इमेज को ड्रा करना है लार्जर स्केल के ऊपर तो बेस्ट ऑप्शन आपका वेक्टर ग्राफिक इमेज होगा. वाई? कैन यू प्लीज टेल मी वाई? कि इसमें स्केल कोई सी भी स्केल में बना सकते हैं. इसका मतलब आप एक्टिव नहीं थे क्लास में. इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ग्राफिक को हम स्केल के ऊपर, क्योंकि जस्ट हम इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने ट्रायंगल शेप बनानी है वेक्टर ग्राफिक के अंदर तो मुझे इसके एंगल पता होने चाहिए, मुझे साइज, लेंथ, जो उनकी साइड की साइज है वो पता होनी चाहिए. मैं इजली इस इमेज को रीड्रा कर सकता हूँ किसी भी लार्जर स्केल के ऊपर. अंडरस्टूड? जी. ठीक है बेटा, मेरी समझ आई? नहीं, सही आ गई. ओके. रिमेंबर दैट जब हम वेक्टर ग्राफिक फाइल की बात करते हैं इसके लिए हम स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. वी कॉल देम एज ए ग्राफ प्लॉटर.
तो ये एक बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर होता है। yes, अगर आपने इमेज को प्रिंट करना है वेक्टर ग्राफिक इमेज को, तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट इमेज इनटू बिटमैप फाइल, ताकि आप इसको इजीली अपने लैपटॉप के अपने प्रिंटर पे इसको प्रिंट कर सकें। अंडरस्टूड? yes. ओके, देन वी हैव व्हाट हैपन व्हेन वेक्टर ग्राफिक फाइल इज डिस्प्लेड। क्या होता है whenever image is to be displayed, file is read। सबसे पहले आप क्या करते हो, फाइल रीड होती है जब भी आप वेक्टर ग्राफिक इमेज को डिस्प्ले करते हो। ठीक है, फाइल रीड होती है, कैलकुलेशंस काउंट की जाती हैं और ऑब्जेक्ट को ड्रा किया जाता है सूटेबल स्केल के ऊपर। आप canvas के ऊपर इसको ड्रा कर रहे होते हो। अगर आप इसको लार्जर स्केल के ऊपर ड्रा करना चाहते हो, आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज ड्रा किया, वो इमेज था 2x4 में था, आप इसको 4x8 में करना चाह रहे हो, बड़े कैनवस के ऊपर ड्रा करना चाह रहे हो, तो इमेज दोबारा कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन जी परफॉर्म अगेन, और आपका इमेज एक बड़े स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अंडरस्टूड? जी दैट इज द रीजन जो आपका वेक्टर ग्राफिक इमेज होता है, इसके अंदर डिस्टॉर्शन या इमेज आपका खराब नहीं होता, स्ट्रेच नहीं होता, स्क्रैच नहीं होता। ठीक है, आपका इमेज स्क्रैच नहीं होता, स्ट्रेच नहीं होता। वाई? बिकॉज जब आप उसको लार्जर स्केल पे करोगे, अगेन इमेज को कैलकुलेट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट्स को दोबारा ड्रा किया जाएगा और आपको इमेज एक मिल जाएगा एक लार्जर स्केल के ऊपर, विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी, विदाउट लूजिंग क्वालिटी। अंडरस्टूड? yes. ओके जी। व्हेन डिजाइनिंग ए लोगो फॉर ए कंपनी, उस केस में आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है, जो इमेज होता है, दैट शुड बी वेक्टर ग्राफिक वाई। जी साथ, लोगो डिजाइन करने के लिए आप वेक्टर ग्राफिक इमेज क्यों यूज करते हैं? साद, आर यू देयर? साद, आर यू देयर बेटा? Hello. जी बताएं ना बेटा। साद, आर यू देयर? साद, हम बात कर रहे थे कि व्हेन डिजाइनिंग लोगो फॉर ए कंपनी, आपको वेक्टर ग्राफिक इमेज क्यों यूज करना पड़ता है? रीजन ये होती है कि आप जब लोगों को कभी छोटे स्केल पे प्रिंट कर रहे होते हो, कभी लार्जर स्केल के ऊपर प्रिंट कर रहे होते हो, तो दैट इज द रीजन कि हमें यहाँ पर वेक्टर ग्राफिक इमेज की जरूरत होती है। जी ओके, सो नेक्स्ट अप्रोच कि डज द इमेज नीड टू बी रीसाइज। अगर आपको इमेज रीसाइज करना पड़े, कभी आपको लार्जर स्केल पे कभी लोअर स्केल पे इसको प्रिंट करना पड़े, तो देन यू नीड टू हैव वेक्टर ग्राफिक इमेज। आपके पास वेक्टर ग्राफिक इमेज आपके पास होना चाहिए। वो खुद कर देता है वो उसपे। जी जी वो खुद कर देता है। जी। सो इमेज को ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू बी स्टोर टू ड्रा द इमेज, तो ऑटोमेटिकली इमेज आपका हो जाता है। ओके, अगर आप डिजिटल कैमरा के थ्रू इमेज को प्रोसेस कर रहे हो, तो वो इमेज डेफिनेटली आपका बिट मैप इमेज होगा। दैट इमेज विल बी योर बिट मैप इमेज होगा। अंडरस्टूड? जी अगर कोई इमेज आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रहे हो, वेब पेज पे इंसर्ट कर रहे हो, दैट इमेज विल बी योर बिट मैप इमेज। जी ओके, वेक्टर ग्राफिक कहाँ पे ज़्यादा चूज किया जाता है? अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग डायग्राम बनानी है या कोई डिज़ाइन बनाना है, तो वेक्टर ग्राफिक इज़ द बेस्ट चॉइस, बिकॉज आपने उस ग्राफ को या उस मैप को लार्जर स्केल के ऊपर भी रीड्रा करना होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उन जो आपकी इंजीनियरिंग की डायग्राम है या मैन्युफैक्चरिंग की डायग्राम है, यू नीड टू यूज़ वेक्टर ग्राफिक इमेज फॉर दैट पर्पज।
Remember that if a vector graphic file has been created but there is need to print a copy of using laser inkjet printer, you need to convert that image into bitmap image, else आप उसको print नहीं कर सकते. Understood, beta? जी. So this is all about vector graphic image.